So welcome students. So we have already learned about acids and bases, and today we learn about salts. Alright, continuing in the chapter acid, bases and salts. So today we learn about the salts. So we already know that when acids and base they react together, they give rise to salt and water. Salt and water. Furthermore, we have also learned that we have got different types of salt. Say we have got acidic salt, we have got basic salts, and we have neutral salts. Alright, and we have already discussed it in our earlier video that acid salt, this is formed when a strong acid reaction between a strong acid and weak base, they react together. For example, we have strong acid such as HCl and the weak base such as ammonium hydroxide. When it reacts, this will give rise to an acidic salt, NH4Cl plus H2O. This salt, when added to water, will give its pH in the acidic range. Similarly, basic salt also, we had seen that when a strong base and a weak acid react together, such as NaOH and when a strong base and a weak acid. Alright, so that is CH3COOH. This is acetic acid. This is a organic acid. That means it is a weak acid. So the salt what it will form will be CH3COONA. So this H from the acid and this OH, this will form H2O. So this will be a basic salt. And the neutral salt is when the acid is also strong and the base is also a strong base. So for example, you have NaOH and HCl. So this will form NaCl and H2O. Alright, so today we learnt about the preparation of chemistry of some important salts. Some important salts chemistry. Alright, so the first what we are going to learn is that is sodium chloride. Sodium chloride. We will write it as NaCl. So just now I discussed how we will make it. This is a strong base and strong acid. NaOH plus HCl. This will give NaCl plus H2O. So strong acid, strong base, this will give me a neutral salt plus water. Alright. And then this salt, naturally also this is found. How this is found in naturally? This is found in seawater. This is also found in rock salt. What is rock salt? In Hindi we will call it as Sendha Namak. Alright. So this has got not a pure white color, rock salt, because it has got some other minerals are also mixed in it. So basically rock salt, it is NaCl is the main constituent. We call it as rock salt, and it is mined just like any other mineral. This is done mining for it. Now you know that this is the main this is via NaCl. This is used in our home as a common salt.
We are using it and we call it as common salt. We are using it in our kitchen. And besides this, using it as a common salt, this is from this NaCl we are forming many important products, such as, see, from NaCl we will form, what all products we will form? We will form caustic soda, that is NaOH. This is formed from NaCl. Then from NaCl we will form bleaching powder. Bleaching powder. Okay, this is CaOCl2. This is known as caustic soda. Bleaching powder. Then we will form baking soda, that is NaHCO3, and we will also form washing soda. Washing soda, Na2CO3. Alright, now let us see all these things, that is from this basic constituent is what? NaCl. इस NaCl से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं? NaCl से हम पहले तो हम अपने खाने में यूज करते हैं एज अ नमक. देन दिस NaCl इससे हम क्या क्या चीज बना सकते हैं? कॉस्टिक सोडा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सोप इंडस्ट्री के लिए. Then we can form bleaching powder from this. We can form baking soda from this. We can form washing soda from this. Now let us see all these products, how we are going to form, how we are going to make from the NaCl. Alright, so the first one, that is NaOH. Let us see. ठीक है, NaOH को हम क्या कहते हैं? Just now I told you that this is known as caustic soda. Caustic soda. Caustic क्यों कहते हैं हम इसे? Because see, soda stands for sodium. और caustic क्यों कहते हैं हम? Because this is corrosive. Corrosive. अगर हम हाथ से पकड़ेंगे तो हमारी स्किन को ये खा जाएगा, तो इसको हम कहते हैं corrosive, इसलिए इसको हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए. ऑलराइट, सो caustic soda हम इसलिए कहते हैं. ऑलराइट, we will call it as caustic soda. ऑलराइट, ना caustic soda बनाएंगे कैसे? ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? लेंगे हम ब्राइन सॉल्यूशन. ब्राइन सॉल्यूशन किसको कहते हैं हम? ब्राइन सॉल्यूशन, ये हो गया NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, इसको हम लोग कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन. और इसकी हम कर देंगे, इसमें पास करेंगे इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, या इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इससे हमें तीन चीजें मिलेंगी. ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन में किया हमने, तो इससे हमें तीन चीजें मिलेंगी. क्या क्या मिलेगा? NaOH प्लस Cl2 प्लस H2. इसको अगर हम ठीक से लिखें बैलेंस करके तो क्या आएगा? दैट इज NaCl प्लस H2O in the presence of electric current. This will form Na, this is H2O, alright, H2O. So this will become NaOH plus Na2NaOH, 2NaOH, Cl2 plus H2. This is balanced equation. Alright, so we are getting three things. अब ये NaOH जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस में जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग कहते हैं एनोड, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग कहते हैं कैथोड. ऑलराइट, उसको हम लोग कहते हैं कैथोड. तो हमें ये सब कहाँ कहाँ पे मिलेगा?
NaOH, see because Na is a metal, so metal जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, तो ये हमें मिलेगा नियर कैथोड, नियर कैथोड, कैथोड की लिक्विड में मिलेगा, ठीक है। देन क्लोरीन, ये नॉन मेटल है, तो ये जाएगा एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा एनोड पे, एनोड पे डिस्चार्ज हुआ पड़ा, discharged at anode. And hydrogen, this is also behaves like metal only, so this will be at cathode. This is discharged at cathode, discharged at cathode. So we are getting three things, and so this process को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों क्लोर एल्कली क्यों कहा, जब हम NaCl की ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें तीन चीजें मिल रही हैं, क्लोर स्टैंड्स फॉर क्लोरीन एंड एल्कली स्टैंड्स फॉर NaOH, सो क्लोर एल्कली प्रोसेस इसको हम कहते हैं, राइट। Alright, now let us see what are the uses of bleaching powder. Uses of bleaching powder. Now bleaching powder, where all we can use, that is we can use to bleach textiles, alright, textiles and paper pulp. Then this is used as a disinfectant. Disinfectant, you must be seeing it is sprinkled in the roadside, and it is also used in swimming pools, etc. Swimming pools, etc. So this is used as a disinfectant. And so this was about bleaching powder. Bleaching powder is what? Calcium hypochlorite. Alright, so this is known as CaOCl2. This is known as bleaching powder. Alright, now let us see the next salt, that is baking soda. This is also very important. Now soda of course comes from sodium. Now baking, we'll just learn how it helps in baking. Alright, so baking soda, chemically what it is? NaHCO3. 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 This chemically name इसका क्या होगा? That is sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. Alright, baking soda. Now how this is prepared? इसको हम क्या करेंगे कि हम लेंगे NaCl का सॉल्यूशन लेंगे, NaCl का aqueous सॉल्यूशन लिया, दैट मीन्स H2O लिया, और इसमें हम पास कर देंगे अमोनिया गैस, ठीक है, और इसमें हम एक गैस पास करेंगे, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। हमने क्या किया? ब्राइन सॉल्यूशन लिया, इसको हम लोग कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। इस ब्राइन सॉल्यूशन में हमने पास करना है अमोनिया गैस NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग कहते हैं अमोनिया। अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों चीजें हमने इसमें पास करनी है, ठीक है। जब इसको हम पास करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा NH4Cl, ठीक है। अब ये सब ऐड हो जाएगा, NH4
Cl इसमें से निकाल दो तो बाकी क्या बचेगा, NaHCO3, NaHCO3। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेज प्रोसेस भी कहते हैं, सॉल्वेज प्रोसेस। पहले वाले हमने प्रोसेस को आपको बताया क्या कहते हैं, दैट इज NaOH के लिए क्लोर एल्कली प्रोसेस, ऑलराइट, एंड दिस इज नोन एज सॉल्वेज प्रोसेस। और इसमें हमने क्या बनाया, NaHCO3, दिस इज नोन एज बेकिंग सोडा। अब ये बेकिंग का काम करेगा कैसे, जब हमने NaHCO3 इसको हमने अपनी डिशेस में डाला तो ये क्या करेगा, इसको जब हमने हीट किया, इस डिश को, ये हीट की साइन होती है, इसको जब हमने हीट किया तो हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, Na2CO3, Na2CO3, और इसमें से निकलेगा एक CO2 और एक H2O। ऑलराइट, सी आई होप दिस इज बैलेंस्ड। H2Na2, 2Na over here, 2Na over here, then कार्बोनेट एक है और ये हो गया हमारा H2H है और ये हो गया CO3। ऑलराइट, सो दैट इज Na2CO3 CO2 प्लस H2O। ये जो CO2 निकला इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि उसमें बहुत सारी एयर स्पेसेस हो जाएंगे, जिससे कि हमारा जो भी डिश को हम बेक कर रहे हैं वो say pakoras etc whatever you are making, this will become very crispy because of this। अब जब हम जो जिस चीज का एक बच्चों को कुछ कंफ्यूजन होता है वो मैं बता रही हूँ आपको, दिस इज बेकिंग सोडा, है ना, ऑलराइट, और एक होता है बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर में क्या होता है, बेकिंग पाउडर में क्या होगा, बेकिंग पाउडर में होगा यही बेकिंग सोडा होगा, ये तो एक मेन इंग्रेडिएंट होगा, और एक माइल्ड एसिड होगी, ठीक है, सच एज टार्टरिक एसिड। Tartaric acid, I have written only H plus, this can be any acid, tartaric acid, citric acid, any mild acid होगी, ठीक है, तो H plus इसलिए लिखा क्योंकि acid will give H plus ion, so this will form, now acid है तो ये क्या बन जाएगा H और ये H2O, CO2 और सोडियम सॉल्ट और एसिड, जो भी एसिड है, अगर टार्टरिक एसिड है तो सोडियम टार्टरेट है, सिट्रिक एसिड है तो सोडियम सिट्रेट बनेगा, ठीक है। सो इस तरीके से बेकिंग पाउडर में सिर्फ बेकिंग सोडा नहीं है, उसमें उसके साथ एसिड है, और ये एसिड जब बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें से CO2 निकलेगा। दिस CO2, दिस विल मेक द breads and cakes and biscuits, whatever we are baking, breads, cakes, etc, this will make it as fluffy, all right, breads and cakes are made fluffy due to the evolution of carbon dioxide, all right, if you are adding only NaHCO3 to the cakes, then this may not be that effective and it may also cause a little bit bitterness. But if you are adding baking soda, then this baking soda is very effective and carbon dioxide will come out quickly and this will make the cakes, breads, etc very fluffy. Alright, so baking soda powder एक तो हमने समझ गए कि भाई एक तो बेकिंग के लिए यूज होगा, ऑलराइट, इसके यूजेस, दैट इज फॉर बेकिंग ब्रेड्स, बिस्किट्स एटसेट्रा। ऑलराइट, दूसरा इसका बहुत अच्छा यूज है, क्या यूज है, it is also used as an antacid,
अब ये एंड एसिड क्या है, ये हमने अभी पढ़ा था. एंड एसिड टू न्यूट्रलाइज the HCl in the stomach. स्टमक में HCl है, इस HCl को ये NaHCO3 ये माइल्ड बेस है, तो ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा और ये बना देगा NaCl जो कि हार्मफुल नहीं है, और H2O और CO2, और ये HCl जो है ये न्यूट्रलाइज हो गया. ठीक है. और तीसरा ये कैसे हो सकता है, और इसमें से जो CO2, इसको गर्म करने से जो CO2 निकल रही है ना, सो दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर. Fire extinguisher. This is also used as a fire extinguisher. So these are the main uses of baking soda. Baking soda is NaHCO3. बनाया कैसे? ब्राइन सॉल्यूशन लिया, ब्राइन सॉल्यूशन में हमने अमोनिया पास किया, कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, तो हमें अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 मिला. ठीक है. NaHCO3 मिला. बेकिंग पाउडर क्या होता है? जब हमने बेकिंग सोडा में थोड़ा सा कोई माइल्ड एसिड डाल दिया, टार्ट्रिक एसिड डाल दिया, उसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा. और उसके यूजेस क्या हो गए? एक तो हो गया बेकिंग, दूसरा हो गया एज एन एंटासिड, और तीसरा हो गया एज अ फायर एक्सटिंग्विशर. ऑलराइट, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट सॉल्ट, दैट इज वॉशिंग सोडा. Washing soda. Soda is again because it contains sodiums. So this is Na2CO3 और इसमें साथ में 10H2O. So this is known as washing soda. Alright, this is known as washing soda. Now how this is prepared? इसको हमने क्या करना है कि जो हमने बेकिंग सोडा बनाया था NaHCO3, इसको जिस वक्त हम हीट करेंगे तो ये बन जा रहा है, हीट करेंगे तो ये बन जा रहा है Na2CO3 और H2O प्लस CO2. ये जो Na2CO3 बना, ये थोड़ा सा मॉइस्चर गेन कर जाएगा एंड ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा एज Na2CO3 10H2O, and this is known as washing soda because this has the property of removing dust and dirt in the presence of water. तो इसको हम लोग कहते हैं washing soda. Alright, we call it as washing soda, and this is the main constituent in laundries. सोप इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज होता है Na2CO3. यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. क्या क्या चीज में यूज करेंगे वॉशिंग सोडा को? Washing soda ko we can use it in the preparation of glass. Alright, in the preparation of glass. और एक बहुत अच्छा यूज इसका जो काफी अक्सर पूछा जाता है, that is in the removal of permanent hardness of water. अभी आप लोगों को पता नहीं होगा ये permanent hardness of water क्या चीज है, लेकिन permanent hardness of water अभी बता रहे. permanent hardness of water. Then तीसरा in the washing of textiles.
in the washing of textile we are using. Now permanent hardness of water क्या है? वाटर हम हार्ड कब कहते हैं? वाटर में अगर हम सोप डाल रहे हैं और ये लैदर नहीं बना पा रहा है, झाग नहीं बना पा रहा है, तो उस वाटर को हम लोग कहते हैं हार्ड. ठीक है. अब ये हार्ड क्यों है, ये आगे आप नेक्स्ट यूनिट में आप पढ़ोगे इसके बारे में कि इसमें कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से जो सॉल्ट्स जो है वो सोप के साथ रिएक्ट कर जा रहे हैं और ये सोप जो है ये लैदर नहीं बना पा रहा है. तो जब हम ये वॉशिंग सोडा इसमें डालते हैं तो वॉशिंग सोडा जो है ये हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर देता है और अब जब हम सोप डालेंगे तो ये अच्छे से लैदर बना पाएगा. इसलिए हम इसको रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में हम इसको यूज करते हैं. ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट वॉशिंग सोडा. नाउ लास्ट सॉल्ट what we have to learn is plaster of Paris. Plaster of Paris. Alright, very important salt. This is also, इसको क्या कहेंगे हम? This is calcium sulfate half H2O. Calcium sulfate half H2O. This is known as plaster of Paris. अब इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है? हमने लेना है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, जिप्सम कहते हैं इसको. इस जिप्सम को जब हम हीट करेंगे अबव 373 केल्विन, 373 केल्विन का मतलब क्या हो गया? 373 केल्विन का मतलब हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ऑलराइट, सो दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे या 373 केल्विन पे हीट करेंगे तो ये बन जाएगा CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O निकल जाएगा इसमें से. अगर हमने इसको हीट कर दिया कितना? अगर हमने इसको हीट कर दिया 400 तक, मतलब 373 से थोड़ा सा ही ऊपर है, लेकिन अगर हमने इसको हीट कर दिया, मान लीजिए इसको अगर हमने हीट कर दिया 400 केल्विन तक हमने इसको हीट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? हाफ H2O भी इसमें से निकल जाएगा. दिस विल बिकम CaSO4. इसको तो हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस. इसको हम लोग कहते हैं डेड burnt plaster, dead burnt plaster. Alright, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आप सब जानते हो फ्रैक्चर वगैरह सब के लिए मेडिकल में यूज होता है. दैट इज, इसको जिस वक्त हम वेट करके सेट करेंगे तो दिस विल सेट इनटू अ सॉलिड. इसको जिस वक्त हम सेट करने की कोशिश करेंगे तो दिस विल नॉट सेट. Alright, so plaster of Paris, this will set into the, जो भी मोल्ड में हम जिस भी मोल्ड में डालेंगे उस मोल्ड के अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगा. Whereas this dead burnt plaster, this will not set into the mold, and this is known as plaster of Paris. कहाँ कहाँ यूज करेंगे? Let us see. यूज करेंगे कहाँ कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं? Uses of plaster of Paris, we will be using it used in joining bones, used in joining bones in the surgical operations. Surgical operations. Alright, then secondly we can use plaster of Paris in decorative ceilings. डेकोरेटिव सीलिंग्स जितनी भी आप देखते हो आजकल फॉल सीलिंग्स बनती हैं या पंखे के ऊपर कुछ सीलिंग बनाते हैं, स्टाइल बनाते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स, ये सब इसमें क्या होता है? पीओपी का काम होता है. दैट इज इन डेकोरेटिव सीलिंग्स में हम इसे यूज करते हैं. ऑलराइट, सो
पीओपी हमने कैसे बनाया, हमने जिप्सम लिया, जिप्सम को से हमने हीट किया और वी गॉट इट एज प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ H2O। अगर ये ज्यादा हीट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, डेड बर्न प्लास्टर, जो कि सेट नहीं होगा। डेड बर्न प्लास्टर सेट नहीं होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम जिस भी शेप में डालेंगे उसी शेप में ये सेट हो जाएगा। फाइन। नाउ लास्ट टॉपिक इन दिस यूनिट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ crystallization. Water of crystallization. So अभी हमने बड़े सारे सॉल्ट के बारे में पढ़ा। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3, और इसके साथ हम साथ में लिखते हैं 10H2O। Alright, then we talked about gypsum also, that calcium sulfate 2H2O, this is gypsum. Alright, this is washing soda, this is gypsum. Similarly, we talked about plaster of Paris also. Plaster of Paris is half H2O, so we call half H2O plaster of Paris. Alright, so all these salts, they are containing crystals है, ये solids है और इसमें water है। तो ये water जो इसके क्रिस्टल के अंदर है, हमें नजर नहीं आ रहा है, क्रिस्टल तो जब हम पकड़ेंगे ये सूखा पाउडर लगेगा, लेकिन इसके साथ वाटर कंटेंट है इसके अंदर। सो सच सॉल्ट्स दे आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ऐसे सॉल्ट्स को हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ठीक है, और इसमें जो वाटर है इसको हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम कहेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसमें आता है कॉपर सल्फेट 5H2O। इसका कलर होगा ब्लू, ये अक्सर पूछा जाता है, ये ब्लू है, और इसको जब हमने हीट किया तो ये बन गया CuSO4 प्लस 5H2O, इसमें से निकल गया तो अब ये गया एनहाइड्रस। एनहाइड्रस होने से ये बन गया व्हाइट कलर। एनहाइड्रस, इसमें से हाइड्रेशन निकल गया, वाटर निकल गया, तो इसको हम लोग कहते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ठीक है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, इसको हम कहेंगे एनहाइड्रस, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसको कहेंगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, और ये व्हाइट कलर का हो गया, ब्लू कलर से ये व्हाइट कलर का हो जाता है। तो इस प्रोसेस को, इस जो वाटर इसमें से निकला कहां से आया, ये वाटर हो जाता है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, एक आपको एक क्वेश्चन लिख करके देती हूं, है ना, दैट इज a blue colored salt of copper was heated in a test tube and it turned white. Some droplets of water were seen. Some droplets of water were seen on the walls of the test tube, on the walls of the test tube. So name or identify the salt
and from where did the water droplets come? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सॉल्ट का नाम क्या है? अभी हमने किया, दिस इज कॉपर सल्फेट 5H2O, दिस इज copper sulfate 5H2O, this is hydrated copper sulfate, और इसको जब हमने, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है, जब हमने इसको हीट किया तो इसमें से ये हो गया एनहाइड्रस सॉल्ट बन गया विच इज वाइट कलर, और ये जो 5H2O निकला, ये कहाँ से निकला? दिस इज वॉज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दिस वॉज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि यहाँ से निकला। Alright, with this we finish this chapter.